Hello dear students, today we are going to learn lesson number 3 and the name of the book is It So Happened. So the chapter is The Selfish Giant. This story is written by Oscar Wilde. You know, The Selfish Giant is a kind of a story which is about a giant who disliked everyone playing in his garden. Upon finding the children playing in his garden, he scared them away, built high walls around it, and put up a notice board saying, "Trespassers will be prosecuted." The story tells us about the giant's transformation from being selfish to kind and how he earned himself a place in paradise. Dear students, इस चैप्टर से हम इस बात को सीखेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि कैसे वो सेल्फिश जाइंट जो एक बहुत ही क्रूएल किस्म का इंसान था, बहुत ही सेल्फिश टाइप का था, उसके पास एक गार्डन था और उसने अपने गार्डन में एक नोटिस बोर्ड लगा रखा था, "Trespassers will be prosecuted." Trespassers means होता है कि without permission nobody can enter into the garden. If anyone who enters in the garden will be prosecuted, means according to law there will be a punishment. Now what happened after that in the story we will know that एक रिफ्लेक्शन है, एक थॉट, एक मोरल हमें इस स्टोरी से मिलता है कि जैसा हम करेंगे ठीक हमें वैसा ही मिलेगा। अगर हम बुरा चाहेंगे तो हमें उसके बदले में बुरा ही मिलने वाला है, अच्छा चाहेंगे तो हम अच्छा ही पाएंगे। इस जाइंट का भी हार्ट ट्रांसफॉर्म होता है और वो बाद में आगे चल करके उन्हीं बच्चों से काफ़ी प्यार करने लगता है जिन्हें कभी वो अपने बगीचे में एंट्री भी नहीं दिया करता था। चलिए तो हम लोग देखते हैं स्टोरी को। स्टोरी स्टार्ट होता है जहाँ से कह सकते हैं यू शुड फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू सजेस्ट यू ओपन योर बुक एंड पुट योर फिंगर ऑन द लाइन। Every afternoon, as they were coming from school, the children used to go and play in the giant's garden. It was a large, lovely garden with soft green grass. Here and there, over the grass, and beautiful flowers like stars, and there were 12 peach trees that in the springtime broke out into delicate blossoms of pink and pearl, and in the autumn before rich fruit. The birds sat on the trees and sang so sweetly that the children used to stop their games in order to listen to them. "How happy we are here," they cried to each other. इस स्टेंजा में हम देखते हैं कि हर रोज बच्चे जो हैं वो स्कूल फिनिश होने के बाद, स्कूल समाप्त करने के बाद वो इस बगीचे में आते हैं, इस जाइंट के बगीचे में आते हैं और खेलते हैं। ये बहुत बड़ा बगीचा है जिसमें बहुत ही फ्रेश ग्रास है, ग्रीन ग्रास है, दिखने में काफ़ी खूबसूरत है, सॉफ्ट ग्रास है। यहाँ पे बहुत अच्छे किस्म के फ्लावर्स हैं जो जिसे स्टार्स से कंपेयर किया गया है। यहाँ पे लगभग जैसा कि स्टोरी में बताया गया है, देयर वर 12 पिच ट्रीज। यहाँ पे 12 पिच के ट्रीज़ हैं जो बिल्कुल खिले हुए हैं और जो स्प्रिंग सीज़न में इसमें बहुत खूबसूरत पिंक कलर के और पर्ल मोतियों की तरह इसमें फूल लग जाते हैं और बाद में इसमें फ्रूट्स भी आते हैं इन ऑटम सीज़न में। बर्ड्स इस पे बैठती हैं और बहुत खूबसूरत से गाना गाती हैं और वो भी काफ़ी इंजॉय करती हैं। Trees sang so melodiously that even the children would stop their play. यहाँ तक कि बच्चे भी अपना खेलना बंद करके उनके गानों को सुनना शुरू कर देते हैं।
द चिल्ड्रेन यूज टू टेल ईच अदर, और बच्चे एक दूसरे से कहते हुए दिखाई देते हैं कि हाउ हैप्पी वी आर हियर, आखिर हम लोग यहाँ पे कितने खुश हैं इस जाइंट के गार्डन में. वन डे द जाइंट केम बैक. ही हैड बीन टू विजिट हिज फ्रेंड द कॉर्निश ऑग्रे and had stayed with him for 7 years. When he arrived, he saw the children playing in the garden. "What are you doing here?" he cried in a very gruff voice, and the children ran away. एक दिन क्या होता है कि वो जाइंट वापस आ जाता है. So giant कहता है कि my own garden is my own garden, said the giant. Anyone can understand that I will allow nobody to play in it but myself. So he built a high wall all around it and put up a notice board. Trespassers will be prosecuted. He was a very selfish giant. You know, some words that you need to underline that I do understand, that Cornish ogre. Cornish ogre, a giant corn wall in UK, United Kingdom. Ogre in legends and fairy stories, cruel giant eats people. In common uses we can say very frightening kind of person, that is called ogre. Gruff means unfriendly, rough, and trespassers, as I told you, a person entering someone's land or property without permission is called trespassers. And prosecuted means according to law, according to court's law, you will be punished, so that is called prosecuted. So what is happening here in the second passage? The giant had not been at his home for 7 years. Giant जो था वो पिछले 7 सालों से अपने घर नहीं यहाँ पे नहीं आया था, अपने घर नहीं आया था. He was at his friend the Cornish ogre place. When he came back, he saw the children playing in the garden. This made the giant angry. और जब वो आया तो उसने बच्चों को देखा वहाँ खेलते हुए, जिसे देख करके वो काफ़ी गुस्से में उसने कहा कि आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ खेलने की. उसने बच्चों को देखा और काफ़ी गुस्से में पूछा कि व्हाट आर यू डूइंग हियर, आखिर तुम लोग यहाँ कर क्या रहे हो, किससे पूछ करके तुम मेरे बगीचे में आए. दिस गार्डन इज़ माई ओन प्रॉपर्टी एंड ही विल नॉट अलाउ एनी वन टू प्ले हियर. दैट्स वाई ही सेट अप ए नोटिस बोर्ड एंड रोट देयर, trespassers will be prosecuted, which meant that anyone who entered his garden without permission will be taken action against. The giant was selfish and lacked consideration for others. The poor children had now nowhere to play. अब बेचारे बच्चों के पास खेलने की कोई जगह नहीं थी. The children were left with no place to play. They tried to play on the road, but the road was so dusty and full of hard stone. That's why they did not like it. They used to wander around high walls when their lessons were over and talk about the beautiful garden inside. How happy we were there, they said to each other. अब जबकि बच्चे अब वहाँ नहीं जा सकते थे, अब वो सोचते हैं कि चलो हम लोग रोड पे खेल लेंगे, लेकिन रोड की हालत थी कि रोड पे बहुत डस्ट था, हार्ड स्टोन्स थे जो उन्हें पसंद नहीं आया. बाद में बच्चे उस बगीचे के चारों तरफ, गार्डन के चारों तरफ चक्कर लगा करके खेलते हैं जब उनका स्कूल ओवर होता है, और एक दूसरे से कहते रहते हैं कि कितने खुश थे जब हम लोग उस गार्डन में खेला करते थे. वो उन्हें याद करते हैं. देन द स्प्रिंग केम, उसके बाद स्प्रिंग आता है. And all over the country there were little blossoms and little birds. Only in the garden of the selfish giant it was still winter. The birds did not care to sing it as there were no children, and the trees forgot to blossom. Once a beautiful flower put its head out from the grass, but when it saw the notice board, it was so sorry for the children that it slipped back into the garden again and went off to sleep. अब पूरे के पूरे एकदम उस एरिया में, entire country, the winter was succeeded and the spring, whereas in the giant's garden it was still winter. सब जगह स्प्रिंग आ चुका था लेकिन गार्डन में अभी भी विंटर ही था.
सब जगह ट्रीज जो थे वो खिल चुके थे, छोटे छोटे बर्ड्स हर जगह पे देखे जा पा रहे थे। लेकिन सेल्फिश जाइंट के गार्डन में ना कोई भी बर्ड वहाँ गाना गाना नहीं चाहती थी, क्योंकि वहाँ कोई भी बच्चा खेल नहीं रहा था। अब उन्हें याद भी नहीं आ रहा था, फूलों को भी यहाँ तक कि याद नहीं था कि हम कब खिलेंगे। However, one flower grew his head, जबकि एक उसमें से एक फूल घास से अपने सर को बाहर निकाल करके झांक करके उसने देखा, तो उसे वो नोटिस बोर्ड दिखाई दिया। जैसे उसने नोटिस बोर्ड को देखा, उन्हें उन बच्चों के लिए बड़ी दया आई और बेचारा फिर से वापस जा करके सो गया। ओके, द ओनली पीपल हु वर प्लीज्ड वर स्नो एंड फ्रॉस्ट। और कुछ लोग थे जो सिर्फ थे वहाँ पे खुश थे, वो थे स्नो और फ्रॉस्ट थे। स्प्रिंग हैज़ फॉरगटन दिस गार्डन, दे क्राइड। वो लोग चिल्ला के कहते थे कि स्प्रिंग ने शायद इस गार्डन को ये भूल चुका है, ये यहाँ नहीं आता। सो वी विल लीव हियर ऑल द ईयर राउंड। इसलिए हम लोग अब पूरा साल खुद ही यहाँ रहेंगे। द स्नो कवर्ड अप द ग्रास विथ हर ग्रेट वाइट क्लॉक एंड द फ्रॉस्ट पेंटेड ऑल द ट्रीज सिल्वर। Then they invited the north wind to stay with them, and he came. He was wrapped in furs and rode all day about the garden and blew the chimney's pots down. This is the delightful spot, he said. We must ask hell on a visit. So the hell came. Every day for 3 hours he rattled on the roof of the castle till he broke most of the slats. And then he ran round and round the garden as fast as he could go. He was dressed in grey, and his breath was like ice. Snow, frost, north wind, hell, all these have been presented as characters or person. North wind is the chilly wind, and hell is the hailstorm. We should underline words like clock, chimney pots, rattled, slate. These all are important questions. Cloak means here sleeveless outdoor over garment that hangs closely from the shoulders. That is called here cape. Chimney pots means an earthenware or metal pipe or deflector, often cylindrical, fitted on the top of the chimney to increase draft and reduce the dispersed smoke. So with the children away from the garden, जैसे ये बच्चे गार्डन से अब दूर थे, द ओनली पीपल, कुछ लोग जो थे वो काफ़ी खुश थे, उनमें से थे स्नो और फ्रॉस्ट। वो लोगों ने डिस्कस किया आपस में कि ये गार्डन रहने के लायक बहुत अच्छा है, पूरा साल हम यहाँ रह सकते हैं, क्योंकि यहाँ स्प्रिंग जो है यहाँ आना भूल गया है। और स्नो ने कहा कि क्यों ना हो वो ऐसा करें कि हम लोग हेल को भी यहाँ बुला लें, क्योंकि उन लोगों ने चारों तरफ सिल्वर के कारपेट बिछ चुके थे फ्रॉस्ट की वजह से। एवरीवेयर देयर ओनली द सिल्वर लाइनिंग, सिल्वर कलर इज शॉन। सो बोथ ऑफ देम इवन इन्वाइटेड नॉर्थ विंड, उन दोनों ने मिलकर के नॉर्थ विंड को इनवाइट किया, जो आया और आकर के वहाँ पे अपने फर लगा दिया। ही मूव्ड एट हाई स्पीड। अब वहाँ पे जो नॉर्थ विंड थी वो काफ़ी तेज़ी से चलनी शुरू हो गई। अब नॉर्थ विंड ने यहाँ तक कि बहुत सारे लोगों को इनवाइट किया, जैसे हेल को भी इनवाइट कर लिया, और हेल आया और साथ में हेल स्टोन भी लेकर के आया। यहाँ तक कि उसने कई सारे स्लेट्स को भी तोड़ दिया। वंस इट वॉज डन द रूफ, यानी छत के ऊपर के काफ़ी सारे स्लेट को भी उन लोगों ने तोड़ दिया। ही वुड कम टू द गार्डन एंड गो राउंड अबाउट इट एन एक्सट्रीमली फास्ट स्पीड। और यहाँ तक कि वो गार्डन के चारों तरफ बड़ी जोर से चक्कर लगाया करता था। एंड उसने पूरे कपड़ों का कलर को ग्रे कर दिया था, और उसके ब्रेथ जो थे वो जैसे ही सांस लेता था नॉर्थ विंड, तो उससे भी कोल्ड और आइसी निकलते रहता था। अब आई कुड नॉट अंडरस्टैंड वाई द स्प्रिंग इज सो लेट इन कमिंग, सेड द सेल्फिश जायंट। सेल्फिश जायंट ने कहा कि मुझे समझ में नहीं आता कि इस साल स्प्रिंग क्यों नहीं आया, आखिर इतना लेट क्यों है। एज ही सेट द विंडो एंड लुक्ड आउट हिज कोल्ड वाइट गार्डन, आई होप देयर विल बी चेंज इन वेदर। मुझे लगता है बहुत जल्द शायद मौसम की बदलेगा। बट द स्प्रिंग नेवर कम नॉर द समर, ना तो मौसम में स्प्रिंग आया सीजन और ना ही गर्मी का मौसम आया।
द ऑटम गेव गोल्डन फ्रूट टू एवरी गार्डन। अब ऑटम में सारे फूल जो थे और फल जो थे वो गोल्डन कलर के हो गए थे। बट द जाइंट्स गार्डन सी गिव नन, लेकिन जाइंट्स के गार्डन में कोई फ्रूट भी नहीं आया। ही इज़ टू सेल्फिश, शी सेड, उसने कहा कि ये बहुत ज़्यादा सेल्फिश है। सो इट वॉज ऑलवेज विंटर देयर, इस वजह से यहाँ पे सिर्फ विंटर ही है। एंड नॉर्थ विंड एंड द हेल एंड द फ्रॉस्ट एंड स्नो डांस्ड अबाउट थ्रू द ट्रीज। इस वजह से यहाँ पे सिर्फ नॉर्थ विंड या स्नो, हेल, फ्रॉस्ट, यही सब मिलकर के यहाँ डांस कर रहे हैं, पेड़ों में यही खुशियाँ मना रहे हैं। सेल्फिश जाइंट जो था वो ये बात समझ नहीं पाया कि आखिर क्या कारण है। वन मॉर्निंग द जाइंट वॉज lying awake in bed when he heard some lovely music। एक सुबह सुबह वो जब थोड़ा जगा हुआ ही था तो उसने बहुत खूबसूरत सी म्यूजिक सुना। इट साउंडेड सो स्वीट टू हिज ईयर्स दैट ही थॉट इट मस्ट बी द किंग्स म्यूजिशियन passing by। It was really only a little linnet singing outside his window, but it was so long since he had heard a bird singing in his garden that it seemed to him to be the most beautiful music in the world. Then the hell stopped dancing over his head, and the north wind ceased roaring, and a delicious perfume came to him through the open casement. I believe the spring has come at last, said the giant, and he jumped out of the bed and looked out. अब एक अच्छे खूबसूरत सुबह में जाइंट जो था वो थोड़ा जगा हुआ ही था, बेड पे लेटा हुआ था। उसे एक बहुत खूबसूरत सी म्यूज़िक सुनाई देती है। उसे लगा कि शायद किंग अपने म्यूजिशियन किंग का म्यूजिशियन जो है इसी के बगल से गुजर रहा है। लेकिन एक्चुअली एक छोटा सा बर्ड था, लिनेट, जो वहाँ पे गा रहा था, खिड़कियों से उसे सुनाई दे रही थी। और ये काफ़ी समय के बाद उसने ऐसे गाना सुना था तो वो काफ़ी खुश हुआ। उसके कानों को विश्वास ही नहीं हुआ कि इतनी खूबसूरत आवाज़ भी उसे सुनने को मिल रही है। उसे लगा कि दुनिया का सबसे बेहतरीन म्यूज़िक वो सुन रहा है। तभी हेल जो था वो रुक गया, बॉदरिंग हिम, एंड नॉर्थ विंड हैड स्टॉप मेकिंग नॉइसेस, और नॉर्थ विंड ने भी अपनी आवाज़ बंद कर दी। अब इसके अलावा उसने महसूस किया कि जो फूल हैं और प्लीजेंट फ्रेगरेंस है वो चारों तरफ खिड़कियों से फैल रहे हैं। ही सेड टू हिमसेल्फ, उसने खुद से कहा, ही थॉट टू हिमसेल्फ, इट माइट हैव बीन स्प्रिंग दैट हैड फाइनली शॉन अप टू हिज गार्डन। उसने सोचा शायद हो सकता है स्प्रिंग फाइनली हमारे गार्डन में आ गया। द जाइंट ग्रीव एक्साइटेड एंड लिफ्ट आउट हिज बेड टू चेक, और वापस वो उठ करके चेक करने लगा कि आखिर सचमुच इसकी एंट्री हो गई है। तो इस तरीके से हमने फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस स्टोरी वी कवर्ड, एंड इन नेक्स्ट वीडियो आई विल start the second passage and will cover it. Till then, you just revise and try to understand. Okay, thank you very much.